हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 14 जून। वृंदावन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का वृंदावन एक दिव्य देहात है। वे पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति द्वारा संरक्षण पर आश्रित है। श्री कृष्ण ने जिस समुदाय को चुना है वह वैश्य समुदाय है, क्योंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा थे अथवा जमींदार, और उनका प्रमुख कार्य गौरक्षा था। माना जाता है कि उनके पास 9 लाख गायें थी और कृष्ण और बलराम अपने अनेक ग्वाल मित्रों के साथ उनकी देखरेख करते थे। प्रतिदिन प्रातः वे अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए चारागाह में ले जाते। हयग्रीव को पत्र 14 जून 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। You construct everything for happiness, but there will be something which will put you into the most miserable condition. This is called material world. They do not. Therefore, one who is intelligent, he thinks that if I have to work so hard for so-called happiness, and here is Krishna is canvassing, asking me that you work for me, so why not work for Krishna? Here I see Viparita and everything is opposite. There is no happiness. So that is intelligence. I have to work hard. Krishna says, just surrender unto me. Sarvadharman parityajya mam ekam saranam bhaja. So Krishna is asking to work for him, giving up everything. That is clear, everyone knows. Here also I am working very hard. But here I am working hard to be happy, but the viparita only. I am becoming unhappy. So why not work for Krishna? This is intelligence. I have to work after all. Jive Swarupai Nitya Krishna Das. Constitutionally, every living entity is a servant. He is serving eternal servant of Krishna. If he does not serve Krishna, then he will have to become servant of Maya. That's all. His servitude, servantship will not go. Neki sanga kele sadharma. Neki, just like Neki, you do not understand the husking machine. Say typewriter. So, if you send the typewriter to the heaven, what does it mean? It is to work as typewriter. Does it mean because it has gone to heaven, the work has changed? No. The work will continue. Either in this hell or heaven, typewriter will cut, and that's all. Similarly, our position is servant. If you don't become servant of Krishna, then you become servant of your wife, your children, your relative, your country, your nation, your dog. At last, if you have no family, then you become servant of your dog. You know, in your country it is very usual. If he has nobody, then he keeps a dog and takes it on the street. His dog passes too and he is standing, waiting. Yes, sir. He passes yours too, I am waiting. Just see, it is practical. If you don't become servant of Krishna, then you have to become servant of the dog.
This is nature's way. Therefore, intelligent person will take lesson from that I have to become servant. Why not become Krishna's servant? Huh? Then I will be happy. There are so many Krishna's servants. They are so happy. Why shall I remain the servant of the Maya? Oh. Kamadinam kutidha. So, we remain servant of Maya on account of my sense gratification. That's all. I remain servant of my wife because I want to satisfy my senses. I want to remain servant of my husband because I want sense gratification. Here is the disease. Everyone. Even the servant of the servant or servant of the dog, because I like it, a pet dog. So actually, instead of becoming master, we become servant. This is the fact. And servant of whom? Kamadinam kutidhana kutidha palita dunnidis. Servant of lust, servants of greediness, kam, krodh, moha, matsarya, servant of all these senses. Therefore, one who is intelligent, there was a Brahmin, he said like this, my dear Lord Krishna, I am now servant. I have served so much. Kamadinam kutidhana kutita dunnidisa. I have served them so nicely that I had to execute something which is above them. If you become servant of somebody, if you say that you have to do it, your conscience does not allow you to do it, still you have to do it. Still you have to do it. A man is stealing for family. He does not like to steal. Still, he is in need of money. He has to steal. Kamadinam kutidhana kutidha palita dunnidis. This is study. You study the psychological condition. When I become servant of Maya, do not wish to do something which is not very good, still I am obliged to do it. But the result is that nobody is satisfied. The same example, just like Gandhi served his country so much, so nicely, so voluntarily. Still, the result was your skill was cut. You see? Result was the reward was that he served his country so much. It is undoubtedly, nobody can serve so sincerely, everybody knows. But the result was even a person like Mahatma Gandhi was killed by his country. Just this morning, Mrs. Sharma was telling that she has worked so much for the family, but still the sons and daughters, they want, no, you cannot go. You serve us. Serve us. You are not satisfied. They will never be satisfied. You serve Maya. The Maya will never be satisfied. Tesang na karuna jata na trupa nupushanti. The intelligent man is speaking, my dear Lord, I have served my senses, lust, anger, greediness, so much so. Still they are not kind upon me. They are still dictating. Do this, do this, do this, do this.
Therefore, Sampratam Labdha Buddhi. Now I have got intelligence by your grace. Guru Krishna Kripa, by the grace of my spiritual master, by the grace of yes, I have got this intelligence. Now I have come to you to serve kindly. This is surrender. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान जब बताए 12वें श्लोक में कि ये राजा और तुम और मैं पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कैसे काम करता है सिस्टम। तो शरीर तो खत्म होता है, तो कोई कहेगा लेकिन 100 साल बाद शरीर खत्म हो रहा है। भगवान कहते हैं नहीं, शरीर तो मृत है और चेंज होता ही रहता है, क्योंकि आत्मा है इसलिए शरीर चेंज हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि जैसे बाल्यावस्था, जन्म होता है तो छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, तो शरीर भी उसका वृद्ध हो जाता है, झुक जाता है, खराब होने लगता है। फिर एक दिन पूरा जब खराब हो जाता है, इररिपेयरेबल हो जाता है, जिसका रिपेयर नहीं हो सकता, तो फिर आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। जैसे आगे श्लोकों में बताएंगे, भगवान कपड़े का उदाहरण देंगे। अब कपड़ा पहनते हैं, धोते हैं, फिर पहनते हैं, धोते हैं, फिर पहनते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद जब वो पूरा खराब हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, सिलाई फट जाती है, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं और नया कपड़ा ले लेते हैं। तो ऐसे ही शरीर का भी होता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, शरीर बदलने से तुम्हें मोहित क्यों होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो कंटिन्यूअसली बदल रहा है। ऐसे तो नहीं है कि भीष्म जो हैं अभी वृद्ध हैं तो बचपन से ही वृद्ध रहे, नहीं, उनका भी शरीर बदला है, तो अभी फिर शरीर बदलेगा। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम दुख क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो शरीर है द्रोणाचार्य का या भीष्म का, ये वृद्ध हो गया है। अभी मैं उनको दूसरा नया शरीर दूंगा। ये जब शरीर छूटेगा, मतलब मृत्यु जिसको कहते हैं, फिर मैं उनको नया शरीर दूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, नया शरीर मिल रहा है, नए शरीर में उनको और एनर्जी रहेगी, तो ये तो अच्छा। इसमें तुम दुख क्यों प्रकट कर रहे हो? फिर भगवान कहते हैं धीर बनना चाहिए, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। आत्मा और भगवान दोनों सेम है। कैसे? दोनों क्वालिटी में सेम है, मतलब दोनों आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। लेकिन जीव जो है, आत्मा जो है, वो क्षर कहलाती है और भगवान अक्षर कहलाते हैं। क्षर मतलब जो जिसका पतन हो सकता है। जैसे हम सब इस भौतिक संसार में हमारा पतन हुआ है, तभी इस संसार में भक्ति करके वापस जा रहे हैं, नहीं तो हमारा पतन हो गया। भगवान का कभी पतन नहीं होता। तो ये धीर पुरुष समझता है, क्योंकि आत्मा तो आध्यात्मिक है, तो आत्मा की तो कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि शरीर जो है वो परिवर्तन होता है। बड़ी साधारण सा है, आप बच्चे कहीं खेलते हैं या घर में कुछ हम काम करते हैं, कहीं हमारा कट फट जाता है, तो क्या होता है, वो पुराना चमड़ी सूख के बाहर आ जाता है और उसकी जगह नया चमड़ी आता है, मतलब शरीर चेंज हो गया उसमें।
किसी किसी का ज्यादा डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, लेकिन फिर वो नया हो जाता है। हड्डी देखिए आपने, हड्डी टूटती है, उसको कोई डॉक्टर नहीं जोड़ता है, वो हड्डी का गुण है, अपने आप जुड़ती है। प्लास्टर तो हम इसीलिए लगाते हैं कि उसको स्टेबल रखें, नहीं तो फिर टेढ़ा जुड़ जाएगा तो हाथ हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। तो इसीलिए उसको सीधा रखना पड़ता है और उसमें हड्डी जुड़ती है। तो ये हड्डी भी जुड़ रही, मतलब ग्रोथ हो रहा है, मतलब नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं। तो ऐसे ही शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा जैसे है वैसे थी वैसे ही रहेगी। जैसे कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कृष्ण जब युद्ध भूमि में थे तो उनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी, भौतिक कैलकुलेशन से। लेकिन कृष्ण वृद्ध नहीं होते। कभी नहीं देखा होगा आपने भगवान कृष्ण, भगवान राम सफेद दाढ़ी, बाल सफेद हो गए, नहीं, झुर्रियां आ गई, क्योंकि भगवान का शरीर नहीं है, वो चिन्मय शरीर है, वो आध्यात्मिक है। हमारा शरीर भौतिक है, इसीलिए इसमें परिवर्तन होता है। तो इस हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से भगवान और जीव सेम है, लेकिन दोनों का लेवल अलग है। एक अणु है, एक विभु है। जैसे समंदर की एक बूंद, उसको टेस्ट करेंगे, वही पूरा केमिकल फॉर्मूला आपको मिलेगा समंदर में। लेकिन समंदर की एक बूंद को कहीं डालेंगे, फेंक देंगे तो कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन समुद्र जब आता है तो पूरा सुनामी लेके आता है। ये फर्क है। जैसे अगर रात को पूर्णिमा का चांद है और बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, आपने एक आईना रख दिया बड़ा, तो उसमें रिफ्लेक्शन आता, चांद का भी बहुत सारे सितारों का, तो दोनों का ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। वो सितारे जो हैं वो जीवात्मा है और चंद्र जो है उसका कंपैरिजन कृष्ण से किया, तो क्वालिटी दोनों की सेम है। तो आत्मा और परमात्मा या भगवान, इनका कभी विनाश नहीं होता, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। और ये शरीर, ये भौतिक पदार्थ, आप कोई भी भौतिक पदार्थ ले लें, आप अपना शरीर ले लें, अपने कपड़े ले लें, अपनी गाड़ी, अपना मोबाइल, अपना घर, ये सब परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि पूरी सृष्टि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये बार बार बनती है सृष्टि और बार बार इसका नाश होता है, फिर बनता है, फिर नाश होता है, ये चलते रहता है। तो भौतिक मतलब इसमें परिवर्तन होता रहेगा। तो अगर भौतिक परिवर्तन को देख के हमें मोहित क्यों होना चाहिए, वैसे ही किसी की मृत्यु देख के भी मोहित नहीं होना चाहिए। परिवर्तन है ना। अगर आपने नया गाड़ी खरीदा, कोई आपसे पूछता है कि पुराना गाड़ी कहाँ गया, अरे बहुत पुराना हो गया था, बहुत रिपेयर करा दिया, बहुत महंगा पड़ रहा था, इसीलिए उसको बेच दिया और नया लेके आ गए, पैसे डाल गए। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? तो ऐसे ही जब भगवान देखते हैं शरीर पुराना हो गया है, तो भगवान उसको चेंज करवा देते हैं। तो परमात्मा और आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में चले जाते हैं। इसलिए मृत्यु को मोक्ष भी नहीं कहते। मृत्यु से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आगे की जर्नी है। और मृत्यु मोक्ष नहीं होती, क्योंकि आत्मा के ऊपर आवरण होता है किसका? मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर का। जब भक्ति करके वो सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, तब जाके हमको मोक्ष मिलता है। तो इसलिए मृत्यु से विचलित नहीं होने वाला व्यक्ति धीर पुरुष कहलाता है। और मृत्यु तो आगे का जर्नी करा रही है, तो विचलित क्यों होना चाहिए? यही भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। हरे कृष्ण।